हेलो एवरीवन। सो आज वापस एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। द टॉपिक नेम इज ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 प्रूव दैट क्वेश्चंस। आई एम डेफिनेटली श्योर दैट सो मेनी स्टूडेंट्स विल बी हैविंग दिस डाउट दैट सर पूरी एक्सरसाइज समझ में नहीं आ रही है, क्या करें। तो चलो आज समझते हैं पूरी एक्सरसाइज। दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। पार्ट 1 विल कवर फर्स्ट 5 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 8.3 एंड सेकेंड पार्ट विल कवर रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस. So let's start with the basic formulas of trigonometry what we have studied in exercise 8.1, 8.2 and two more formulas what we studied before 8.3. तो ये कुछ formulas है जो हम लोग यूज करेंगे exercise 8.3 में. That sine is a inverse of cosec, cos is a inverse of sec, tan is a inverse of cot, tan can be sine by cos also, and same way cot इसका reciprocal that is cos by sine. Same way to get value 1 we have three formulas. Sin square plus cos square can also be 1, sec square minus tan square can also be 1, and cosec square minus cot square can also be 1. Same way, now to find the value of sin square I can shift cos square on right hand side. So we got sin square as 1 minus cos square. Same way to find the value of cos square we can shift sin square on right hand side. So we can say cos square is equals to 1 minus sin square. In textbook they have given this formula, but we can from that we can shift tan square and cot square, so we can find the value of 1. Okay, so these are the formulas which you are going to use in exercise 8.3 all 10 questions and many more if you solve RS Agrawal, RD Sharma. तो सारे टॉपिक में बेसिकली फॉर्मूलास तो यही यूज होने वाले, और तो नया क्या होगा। चलो देखते हैं वन बाय वन ऑल द क्वेश्चंस. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट कोसेक थीटा माइनस कॉट theta whole square is equal to, we need to bring 1 minus cos upon 1 plus cos. Okay, so over here if we start from left hand side part, so we can apply for cosec 1 upon sin theta minus cot, I can write cos theta upon sin theta. ठीक है, अब आप सोचोगे सर मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई क्यों नहीं किया। अगर मैं वो अप्लाई करता तो मेरे पास 3 टर्म होते, वापिस वो सब सॉल्व करना। तो उससे बेटर है अगर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में आंसर लाना है तो सीधा कोसेक और कॉट की फॉर्मूला अप्लाई कर लो। और एक रीजन कि डिनोमिनेटर से दोनों का सेम होगा, ठीक है, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, इफ डिनोमिनेटर इज सेम तो इट इज 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर. Now in right hand side part if you will see numerator में already 1 minus cos theta है जो हमारे पास already available है. तो अगर मैं ऊपर नीचे दोनों साइड में स्क्वायर लगा लूँ तो इट इज 1 minus cos theta होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा. साइन को भी स्क्वायर लगेगा, मतलब न्यूमरेटर में ऑलरेडी 1 minus cos theta जो हमको लाना है ऑलरेडी है हमारे पास, तो उसको सिर्फ मैं 2 बार लिख दूंगा 1 minus cos theta into 1 minus cos theta. I will write the same thing 2 times. Why is it so? Because हमें पता है कि सपोज 2 का स्क्वायर है तो 2 हम लोग 2 बार लिखते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार लिख दिया, ऑलरेडी एक बार तो चाहिए हमें। नाउ इन डिनोमिनेटर पार्ट हमने अभी रिवाइज किया, व्हाट इज साइन स्क्वायर, इट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. नाउ न्यूमरेटर विल स्टिल बी एज इट इज, बट इन डिनोमिनेटर पार्ट आई कैन अप्लाई a square minus b square. Why? Because both are perfect square. तो 1 square minus cos theta whole square. Again numerator will keep it as it is. Now in denominator part as we can apply a square minus b square, the expansion will be 1 minus cos theta and 1 plus cos theta. a minus b, a plus b फॉर्मूला है हमारे पास। तो देखो आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में पूरा 1 minus cos पूरा ब्रैकेट कट हो गया, तो क्या बचा 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta, and that is our right hand side part. Easy. तो क्या किया, सिर्फ दोनों की फॉर्मूला अप्लाई की और थोड़ा बहुत ट्विस्ट यहाँ पे था जो हमने सॉल्व किया। क्लियर? लेट्स सी सेकेंड वन. cos upon 1 plus sin plus 1 plus sin upon cos, and we need to bring by solving this as 2 sec a. तो again if we start from left hand side part, क्या करेंगे, ये भी सेम, कॉस और कॉस भी सेम। एक काम करते हैं सीधा एलसीएम ले लो। तो अगर मैं एलसीएम ले लूं तो कॉस इंटू कॉस क्या होगा, कॉस स्क्वायर है। 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन क्या होगा, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, बिकॉज पूरा टर्म है
तो टर्म के ऊपर पावर 2 जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। ये क्या हो गया, हमारा एलसीएम वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब न्यूमरेटर पार्ट में cos स्क्वायर a विल कीप इट एज इट इज, बट आई कैन अप्लाई a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला फॉर दिस ब्रैकेट। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन, तो इट इज 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन विल कीप डिनोमिनेटर पार्ट एज इट इज, ठीक है। अब हमारे पास वो फर्स्ट स्लाइड में देखा हमने कि हमारे पास एक फॉर्मूला थी cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, क्या होगा 1। तो इंस्टेड ऑफ दीज टू विल राइट 1, रिमेनिंग 1 प्लस 2 साइन ए विल कीप इट एज इट इज, ठीक है। डिनोमिनेटर पार्ट तो पहले से जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा। नाउ आई कैन ऐड दीज टू नंबर, तो 1 प्लस 1 इट इज 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन स्टिल डिनोमिनेटर विल कीप इट एज इट इज, दैट इज cos ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए एज इट इज। अब देखोगे न्यूमरेटर में दो टर्म है, एक ये टर्म और एक ये टर्म। नाउ फ्रॉम दीज टू टर्म व्हाट कैन बी कॉमन, वी कैन कैरी आउट 2 एज अ कॉमन नंबर। तो इफ वी कैरी आउट 2 कॉमन तो क्या बचा यहाँ पे 1 प्लस 2 कॉमन, क्या बचा सिर्फ साइन ए, डिनोमिनेटर cos a into 1 plus sin a as it is. Now again if you will see whole bracket is same, कट हो गया पूरा ब्रैकेट, तो 2 एज इट इज 1 अपॉन कॉस, क्या है फॉर्मूला sec a, आ गया राइट हैंड साइड पार्ट। इजी है, एक बार आप थोड़ा दिमाग लगाओगे, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ग्रेजुअली आपको वो पिकअप आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, बट प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। लेट्स गो विद द थर्ड वन। हमेशा बोले सर ये थोड़ा बहुत लेंदी है, मैं मानता हूं थोड़ा बहुत लेंदी है, देखते हैं। सो अगेन इफ वी स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड पार्ट के 10 अपॉन 1 माइनस कॉट प्लस कॉट अपॉन 1 माइनस 10, ये सॉल्व करके हमको ये लाना है, ठीक है। देखते हैं। तो 10 और कॉट की फॉर्मूला है हमारे पास है, व्हाट इज 10 साइन बाय कॉस एंड व्हाट इज कॉट, उसका रेसिप्रोकल कॉस बाय साइन। चलो लगाते हैं। सो tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड डिनोमिनेटर में 1 माइनस व्हाट इज कॉट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट इज अगेन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, नीचे डिनोमिनेटर में व्हाट इज tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखोगे यहाँ पे तो दोनों के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकता हूँ मैं, बिकॉज एलसीएम लेना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर पार्ट में साइन थीटा विल बी एज इट इज, डिनोमिनेटर पार्ट में कॉस थीटा। अगर मैं एलसीएम लूँ तो साइन इंटू 1 क्या होगा, साइन थीटा माइनस 1 इंटू कॉस कॉस थीटा, और एलसीएम क्या हो गया साइन थीटा प्लस ओवर ईयर न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर में साइन थीटा भी एज इट इज। वापिस यहाँ पे एलसीएम लो, कॉस इंटू 1 कॉस थीटा, 1 इंटू साइन साइन थीटा अपॉन एलसीएम क्या बचा कॉस थीटा, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, ये भी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये भी ऊपर जाएगा, तो क्या होगा साइन अगर ऊपर गया तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बचा कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। प्लस सेम वे अगर कॉस ऊपर गया तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में क्या बचा साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। नाउ ओवर हियर इफ यू विल सी कि डिनोमिनेटर पार्ट में यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कॉस है, ये ब्रैकेट में साइन माइनस कॉस है, यहाँ पे ब्रैकेट में कॉस माइनस साइन है, तो ये इसका एग्जैक्टली उल्टा है। अगर मुझे दो ब्रैकेट सेम करने हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये माइनस साइन में कॉमन निकाल दूंगा। अगर ये माइनस साइन कॉमन निकालूंगा तो यहाँ से मिडल एक्चुअल में जो साइन है वो चेंज हो जाएगी, तो क्या होगा विल कीप साइन स्क्वायर एज इट इज, मतलब कि दिस पोर्शन इट विल बी एज इट इज, ठीक है। अब ये माइनस साइन मैंने कॉमन निकाली तो प्लस की जगह पे लिखूंगा मैं माइनस, न्यूमरेटर पार्ट विल स्टिल बी एज इट इज, डिनोमिनेटर पार्ट में साइन भी एज इट इज, पर अब ब्रैकेट कॉस माइनस साइन की जगह पे क्या होगा
sin theta minus cos theta. So if we want to take LCM, at least we got one bracket same. तो क्या बाकी है अभी, ये साइन में यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा LCM लेने के लिए, और ये कॉस में यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो ऊपर क्या हो गया, साइन इंटू साइन स्क्वायर, इट विल बी साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस इंटू कॉस स्क्वायर विल बी कॉस क्यूब थीटा. नाउ तो क्या बचा डिनोमिनेटर में, एक साइन थीटा बचा, एक कॉस थीटा बचा, और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बचा. ठीक है, बहुत बड़ा था, छोटा हो गया अभी. नाउ ओवर हियर वी कैन अप्लाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला. अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला का एक्सपांशन क्या है, एक बार देख लेते हैं. ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. मतलब यहाँ पे ए टर्म हो गए हमारी साइन थीटा और बी टर्म हो गए हमारी कॉस थीटा. अप्लाई करो तो पहले ब्रैकेट में क्या है, ए माइनस बी, तो क्या होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. ठीक है, हो गया ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. नाउ डिनोमिनेटर पार्ट तो जो है वैसा का वैसा ही रहेगा. Now if you will see numerator part sin minus cos, denominator part sin minus cos, पूरा ब्रैकेट सेम, तो पूरा ब्रैकेट कट हो गया. तो क्या बचा, ऊपर तीन टर्म बचे, नीचे साइन इंटू कॉस बचा. नाउ ओवर हियर ऑल्सो इफ यू विल सी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा हमारा 1. तो इंस्टेड ऑफ दिस विल राइट 1, राइट. तो क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा divided by sin theta into cos theta. So if you will see numerator we have two terms and denominator we have one term. So what we can do, we can divide individually sin and cos to both the terms. So कैसे लिखेंगे, 1 upon sin into cos plus sin into cos upon sin theta into cos theta. ठीक है, क्या किया बेसिकली हम लोग ने, sin into cos theta 1 के नीचे भी डिवाइड किया और साइन इंटू कॉस के नीचे भी डिवाइड किया. मतलब दो टर्म है, दोनों को इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो दोनों को इंडिविजुअली डिवाइड क्यों किया, बिकॉज 1 अपॉन साइन क्या होगा कोसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस क्या होगा इंटू सेक थीटा प्लस. अब ये तो पूरा सेम है, तो पूरा कट हो गया. तो क्या बचा यहाँ पे 1. अब ये क्या है, ये हमारा है राइट हैंड साइड पार्ट, 1 प्लस सेक इंटू कोसेक, 1 प्लस कोसेक इंटू सेक, एक ही है, अलग नहीं है. ठीक है, तो आई नो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली आपको आएगा. वापस समझना हो थोड़ा रिवाइंड कर लो, वापस सुन लो मेरी स्टोरी, डेफिनेटली समझ में आपको आ ही जाएगा. ठीक है, बढ़ते आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस. नाउ अगेन इफ वी स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड पार्ट, तो 1 प्लस सेक को क्या करेंगे अपॉन 1 अपॉन कॉस ए. अगेन फॉर सेक ए वी कैन राइट 1 अपॉन कॉस ए. तो न्यूमरेटर पार्ट में मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा. तो कॉस ए इंटू 1 कॉस ए प्लस 1 इंटू 1 1 अपॉन एलसीएम कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कॉस ए विल बी एज इट इज. तो इसके डिनोमिनेटर में भी कॉस, इसके भी डिनोमिनेटर में कॉस, तो कॉस और कॉस कट हो गया. क्या बचा, सिर्फ कॉस ए प्लस 1. नीचे तो हालांकि 1 ही है तो चलेगा, 1 ना लिखो तो. सो माई आंसर फॉर लेफ्ट हैंड साइड पार्ट इज कॉस ए प्लस 1. नाउ कैन आई सॉल्व दिस फर्दर, नो. तो बेटर व्हाट वी कैन डू, चलो राइट हैंड साइड पार्ट भी सॉल्व करते हैं अलग से, देखते हैं उसका आंसर क्या आएगा. राइट हैंड पार्ट में क्या है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस. तो व्हाट आई कैन डू फॉर साइन स्क्वायर ए, आई कैन अप्लाई फॉर्मूला फॉर साइन स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस cos square a upon denominator will keep it as it is. Now if you will see again in numerator part, can we apply a square minus b square? Yes. How? Make them perfect square first of all. 1 का square 1 upon minus cos a का square b cos square a upon 1 minus cos a will keep it as it is. Now over here if you will apply a square minus b square formula, तो क्या होगा, एक ब्रैकेट में 1 minus cos मतलब k minus b, एक ब्रैकेट में 1 plus cos मतलब कि a plus b. तो a minus b a plus b is the formula. Denominator part will keep it as it is. तो पूरा ब्रैकेट सेम, कट. क्या बचा, सिर्फ 1 प्लस cos a. अगर दोनों का आंसर सेम हो गया तो व्हाट वी कैन राइट, हेंस LHS इज इक्वल्स टू
RHS. इजी, सिंपल. नेक्स्ट वन, चलो. फिफ्थ वन, cos माइनस साइन प्लस 1 अपॉन cos प्लस साइन माइनस 1, और हमको लाना है कोसेक प्लस कॉट. ओके, अब हर एक टर्म को अगर मैं कोसेक और कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो कैसा रहेगा? तो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग? तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं डिवाइड करूंगा. डिवाइड ऑल टर्म्स विथ, कैसे डिवाइड करेंगे? साइन से डिवाइड करो, कॉस से डिवाइड करो. चेक कैसे करेंगे? अगर मैं 1 अपॉन साइन कर दूं तो क्या मिलेगा? कोसेक. अगर मैं 1 अपॉन कॉस करूं तो क्या मिलेगा? सेक. क्या हमको सेक लाना है यहाँ पे? नहीं, हमको क्या लाना है? कोसेक. तो मैं हर एक टर्म को साइन से डिवाइड कर दूंगा मैं. मतलब कि 1 2 3, नीचे 1 2 3, टोटल 6 टर्म को मैं डिवाइड करूंगा साइन से. कैसे लिखेंगे देखते हैं. तो कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए. ये हुआ न्यूमरेटर वाला पार्ट. अब डिनोमिनेटर की बारी. कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन. ठीक है, मतलब हर एक टर्म को साइन से डिवाइड कर दिया. तो उससे हमको मिला क्या कि कॉस अपॉन साइन क्या होगा? कॉट. माइनस साइन अपॉन साइन, काटो के बाद 1, प्लस 1 अपॉन साइन क्या होगा? कोसेक ए डिवाइडेड बाय, अगेन कॉस अपॉन साइन वी गॉट कॉट ए, प्लस साइन बाय साइन कट हो गए 1, माइनस 1 अपॉन साइन विल बी कोसेक ए. मतलब कि पूरा जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है वो हमने कोसेक और कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, नाउ विल जस्ट रीअरेंज के -1 और नीचे +1 को पीछे लिख दे. सो कॉट ए प्लस कोसेक ए -1 अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए +1. ठीक है, अब -1 और +1 को पीछे शिफ्ट करने का रीजन क्या है कि मैं यहां पे 1 को रिप्लेस करूंगा. अब पहली स्लाइड में हमने देखा था कि 1 के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूला थी. साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी 1 होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर भी 1 होगा, और कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर भी 1 होगा. तो यहाँ पे बात कोसेक और कॉट की चल रही है, तो डेफिनेटली कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर को अप्लाई करेंगे 1. तो कौन सा वाला 1 को रिप्लेस करूं? नीचे वाला 1 को रिप्लेस करूं कि ऊपर वाले 1 को रिप्लेस करूं? अब हमारा आंसर किसके कहां पर है? न्यूमरेटर में कि डिनोमिनेटर में? न्यूमरेटर में. तो एक काम करते हैं, न्यूमरेटर वाले 1 को ही रिप्लेस करते हैं. चलो देखते हैं. मतलब अगर मैं 1 को रिप्लेस करूं तो बाकी की सारी टर्म वैसी की वैसी ही रहेगी, उसमें कोई चेंज हम लोग नहीं करेंगे. सो कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, इंस्टेड ऑफ 1 which formula you will apply? कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर. ठीक है, और जैसे मैंने बताया डिनोमिनेटर पार्ट को कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे ऐसे के ऐसे ही. कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1. नाउ ओवर हियर दिस टर्म कैन बी एज इट इज. ठीक है, माइनस, बट यहां पे तो मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर सकता हूं. तो क्या होगा? एक ब्रैकेट में होगा a माइनस बी और एक ब्रैकेट में होगा a प्लस बी. अगेन डिनोमिनेटर पार्ट को कुछ नहीं करेंगे, वैसे का वैसे ही छोड़ देंगे. ठीक है, अब माइनस के पहले एक टर्म, माइनस के बाद एक टर्म, तो दोनों टर्म में से कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, राइट? कॉट प्लस कोसेक, कॉट प्लस कोसेक, मतलब कि ये टर्म अगर मैं न्यूमरेटर पार्ट में से कॉमन निकाल लो, क्या? कॉट ए प्लस कोसेक ए. अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो इसकी जगह पे क्या बचा? 1, बिकॉज तो कॉमन निकल गया. फिर कहां पे पहुंचे हम लोग? माइनस साइन. अब दो ब्रैकेट में से कॉट प्लस कोसेक ऑलरेडी कॉमन है, तो क्या बचा ब्रैकेट में? कोसेक ए माइनस कॉट ए. डिनोमिनेटर तो मैंने बोला कुछ नहीं करेंगे, ऐसे कैसा ही छोड़ देंगे. ओके, सो नाउ जो कॉमन निकला विल कीप इट एज इट इज. पहले ब्रैकेट में साइन रिजॉल्व करते हैं. 1 ब्रैकेट ओपन करो, सो माइनस कोसेक ए माइनस माइनस
प्लस कॉट ए, डिनोमिनेटर वैसा का वैसा ही रहेगा। तो अब क्या समझ में आ रहा है देख के कि ये जो पार्ट है 1 माइनस कोसेक प्लस कॉट, देखो सेम है, 1 पॉजिटिव है, कोसेक नेगेटिव है, हाँ है, कॉट पॉजिटिव है, मतलब कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट पूरा सेम कट हो गया। बचा क्या जो हमको लाना है वो, दैट इज कॉट ए प्लस कोसेक ए, दैट इज आवर राइट हैंड साइड पार्ट। तो अगेन जैसे मैंने बताया, मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत लेंथी है, हर एक क्वेश्चन में अप्रोच अलग अलग है, बट स्टूडेंट्स 10th में हो ऐसा भी नहीं है, आप 5th 6th में हो, प्रैक्टिस थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी। यू नीड टू रिवाइज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड स्टिल इफ यू फील कि यू आर समवॉट लैकिंग बिहाइंड इन ट्रिगोनोमेट्री पार्ट, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वीक में एक बार ट्रिगोनोमेट्री लेके बैठो। ट्रस्ट मी, आफ्टर अ वीक और 2 डेफिनेटली मजा आएगा। ठीक है, तो ये आपके थे फर्स्ट 5 क्वेश्चंस होप दैट के 10 क्वेश्चन टोटल है।